Good morning, friends. Today we are going to read chapter The Interview, CBSE Flamingo, chapter number 7, part 2. So let us read part 2 of the chapter The Interview. I am a professor who writes novels on Sundays, written by Umberto Eco. The following is an extract from an interview of Umberto Eco, and the interviewer name is Mukund Padmanabhan, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर से. Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar. किसके लिए? For his ideas on semiotics. Semiotics क्या होता है? Study of signs and symbols. Semiotics जो कि लिखा भी है, द स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, जिससे पहले कि वो फिक्शन लिखना स्टार्ट उन्होंने किया. लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. हिज रिटन आउटपुट जो है इज स्टैगरिंगली लार्ज. स्टैगरिंगली क्या कह सकते हैं? astonishingly large and wide ranging. In 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom जब उनका क्या पब्लिश हुआ? द नेम ऑफ द रोज, विच सोल्ड मोर देन 10 million copies. So Mukund started asking the question. The English novelist and academic David Lodge once remarked, कहते हैं उन्होंने एक बार आपके बारे में कहा था, I cannot understand how one man can do all the things like he does. जैसे कि आप इतनी सारी चीज़ें कर लेते हो तो वो समझ नहीं पाते कि एक व्यक्ति इतनी सारी चीज़ें अकेले कैसे मैनेज कर सकता है. Then Umberto Eco replied, Maybe I give the impression of doing many things, but in the end I am convinced I am always doing the same thing. Mukund, which is कैसे? तो Umberto Eco replied, now that is more difficult to explain. I have some philosophical interest and I pursue them, means follow them through my academic work and my novels. Even जो मेरी बुक्स हैं चिल्ड्रन के लिए are about non-violence, number one, and peace. You see the same bunch of ethical philosophical interest. एंड देन आई हैव अ सीक्रेट. मेरे पास एक सीक्रेट भी है. डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम ऑल द यूनिवर्स? अगर क्या होगा अगर सारा एम्प्टी स्पेसिस को एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए. तो एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसिस इन ऑल द एटम्स, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फीस्ट. पूरा यूनिवर्स जो है मेरी फीस्ट यानी कि मुट्ठी जितना ही बड़ा रह जाएगा. लेट्स मूव टू द सेकेंड पेज. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. Interstices means space, gap. मैं उन्हें interstices कहता हूँ. Say you are coming over to my place. कहो कि तुम मेरे जो है घर पर आ रहे हो. And you are in an elevator and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstices. उसे हम एक interstices यानी कि एक empty space कहते हैं. I work in an empty spaces while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor. I have already written an article. एंड साथ में हंसते हैं. यानी कि मान लीजिए कि उनका घर जो है फोर्थ फ्लोर पे है और वो फर्स्ट फ्लोर से एलिवेटर ले रहे हैं आपके पास आने के लिए. तो जब तक वो फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक पहुंचते हैं तो उस स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को, उतने समय को उन्होंने एक आर्टिकल लिखने के लिए यूज़ कर दिया. सो मीन्स हाउ एक्चुअली ही यूटिलाइज दैट गैप्स. Mukund, not everyone can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, जो कि invariable, depersonalized और often dry होता है और boring होता है. Have you consciously adopted an informal approach? या फिर कोई ऐसी चीज़ है just came naturally to you? Umberto Eco ने कहा, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स. स्कॉलर्स जो हैं एक सर्टेन सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ लर्न करते हैं, फिर उसके बाद वो एक फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड क्या करते हैं? दे पुट द कंक्लूजन्स. यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, इवन इंक्लूडिंग अपना ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हो. एट द सेम टाइम ही रिकोगनाइज्ड, जो प्रोफेसर है उसने रिकोगनाइज किया कि आई वॉज राइट and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. जिसका मतलब है कि उन्होंने मेरे काम को appreciate किया है. At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done, or by telling the story of the research. This is why my essay always have a narrative aspect, and this is why probably I started writing narratives यानी कि novels so late. And कब? At the age of 50 more or less. I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was essayist, कि वो हमेशा frustrated रहता था कि वो एक essayist है, not a novelist.
एंड ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, वो चाहता था कि आज मैं क्रिएटिव राइटिंग करूँ या कल करूँ, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do one day. The next page. मेरे को एक दिन कुछ करने के लिए नहीं था. And so I started novels. Novels satisfied my taste for narration. Mukund, talking about novels, from my being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous. जब आपका कौन सा नोवेल पब्लिश हुआ? The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. उम्बर्टो इको ने उसको करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, ओवर 20 नहीं बल्कि ओवर 40. मुकुंद कहता है ओवर 40. अमंग दैम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सिमोटिक्स. उसके बाद आपने थोड़ा काम सिमोटिक्स पे भी किया है. बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट उम्बर्टो इको, वो यही कहेंगे, ओह ही इज़ द नॉवलिस्ट, डज दैट बॉदर यू? क्या आपको ये सुनकर बॉदरेशन होती है क्या? उम्बर्टो इको ने कहा, येस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज. एंड ये जोक नहीं है. आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ अकेडमिक कम्युनिटी से. बट ओके, इफ़ दे यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रेड ओनली द नोवेल्स, हंसते हैं और अपने कंधे को झटकाते हैं. आई नो दैट बाई राइटिंग नोवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सिमोटिक्स. मुकुंद फिर पूछते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नोवेल है आपका, एंड इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल. और दूसरे लेवल में ये डील करता है मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स में. येट फिर भी इसको इन्जॉय किया गया ह्यूज मास ऑडियंस द्वारा. वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? क्या आप इस बात से, कामों से सारी से पजल हुए हैं? उम्बर्टो ने कहा, नो, जर्नलिस्ट पजल्स होते हैं एंड समटाइम्स पब्लिशर्स हो जाते हैं. एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल जो है वो ट्रैश यानी कि नॉनसेंस, बकवास पसंद करते हैं एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस. कंसिडर देयर आर 6 billion पीपल ऑन दिस प्लेनेट. और नेम ऑफ द रोज जो है वो कितने में बिका है? 10 and 15 billion, 10 and 15 million कॉपीज बिकी हैं उनकी. सो in a way I reached only a very small audience. The last page, percentage of readers. But it is exactly these kind of readers, ये वही readers हैं who do not want easy experiences, और at least जो जल्दी don't always want this, जो हमेशा ये नहीं चाहते. एंड आई माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ, एट 9 PM आफ्टर डिनर मैं टेलीविज़न देखता हूँ एंड वॉन्ट टू सी इधर माइमी वॉइस और एमरजेंसी रूम देखता हूँ. आई एन्जॉयड इट क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, बट नॉट ऑल डे, बट पूरे दिन नहीं. मुकुंद पूछता है, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री? तो उम्बर्टो को बीच में उसको आंसर देते हुए कहते हैं, हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, बिकॉज मैं हमेशा स्टोरी सुनाता हूँ लाइक ए चाइनीज़ वाइल्ड मैन. माई अमेरिकन पब्लिशर ने कहा था, वो उसको बहुत पसंद करती थी मेरी बुक को. शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ कंट्री वेयर नो बडी हैज़ सीन अ कैथेड्रल, या किसी ने स्टडीज़ लैटिन की हो. तो मुझे एडवांस दिया गया 3000 कॉपीज़ का, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द US. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. मेरे से पहले भी काफ़ी लिखी गई हैं. I think the success of the book is a mystery. वो एक रहस्य है and nobody can predict it. I think if I had written the name of the rose 10 years earlier या 10 years later, it wouldn't have been the same. Why it worked at that time? ये उस समय कैसे वर्क कर गई, ये अभी भी एक मिस्ट्री है. तो क्वेश्चंस अगर देखें इसके अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में, डू यू थिंक उम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? तो यस ही बोलेंगे, बिकॉज ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस विच वाज आस्क्ड बाय मुकुंद पद्मनाभन. हाउ डज इको फाइंड द टाइम एंड टू राइट सो मच एज ही वॉज हैबिचुअल टू यूज़ द इंटरस्टाइसिस? तो वो एग्जाम्पल्स आपने एलिवेटर का लिख सकते हो उसमें. वट वॉज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? नरेटिव आस्पेक्ट है उनका, दैट कैन बी मैंशनड हियर. Did Umberto Eco consider himself as a novelist first or as an academic scholar? That also we have studied recently that he considered himself as an academic scholar, not a novelist. What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? ये भी आपने अभी पढ़ा कि that is still a mystery which he is not able to identify how it become a lot of successful. बट इसमें आप उसके सब्जेक्ट्स पोर्शन को डील कर सकते हो, जैसे मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी वगैरह का मेंशन कर सकते हो. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. आई होप all of you have listened the chapter carefully and prepare it well.
For any kind of queries and problem, kindly comment in the comment section. Thank you and have a nice day.